Hello friends, welcome to Insight, and this is our module for this week that's called Recapitalization of Banks. I'm sure आप ये बहुत बार सुन रहे होंगे कि recapitalization of bank हो रहा है. So what is this recapitalization of bank? What are the, you can say, background about this? Number one. Number two, in what manner government is doing this? That is number two. Number three, we will also understand how this recapitalization is very critical for our Indian economy and what may be negative consequences of this recapitalization of banks. Okay, so let me start. First and foremost, the big question is, why should we learn? Primarily, a news item which has come saying that government has announced capital infusion into public sector bank, and which is to be carried over next 2 years, and the amount is 2.11 lakh crore. Okay, so this was announced in October 2017. Okay, so this was a big announcement, and that's possibly the reason why we needed to learn this. Okay, now the point is, the banks have a lot of NPAs, so that is non-performing assets. Okay, and the companies which have taken loans from bank, they are also having lot of losses. एक तरफ बैंक के लॉसेस है और एक तरफ कंपनियों के लॉसेस है. जो कंपनियों ने उन्हीं बैंक से लोन लेके रखी है और वो लॉस में चल रही है. ठीक है, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है दैट बैंक आर नॉट एबल टू रिकवर द इंटरेस्ट ऑन देयर लोन and these companies are not able to repay their interest, and this is popularly known as twin balance sheet problem. अब ये आइडिया है ना, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यन, इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था. और ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के लिए वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस. ओके, देयर इज अनदर सॉल्यूशन जो आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट वो सेकेंड सॉल्यूशन उन्होंने बताया है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे. आज हम सिर्फ और सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में बात कर रहे हैं. सो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक इज डिवाइडेड इनटू, यू कैन से, 3 पैकेजेस. नंबर 1, which will come through budget, some around 18,000 crore. Number 2, 58,000 crore will come from the market, that is bank will raise that money. Okay, and the rest of the 1.35 lakh crore will come through this recapitalization of bonds. Okay, now let us understand what is this recapitalization. ध्यान रखिएगा, ये आपके बिल्कुल बैकग्राउंड में रखिएगा. एनपीएस, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है. सो अब ये ध्यान रखिए रिकैपिटलाइजेशन होता क्या है. पहला, रिकैपिटलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ एनहांसिंग फाइनेंशियल बेस ऑफ एन एंटिटी टू ओवरकम देयर रफ फाइनेंशियल सिचुएशन और टू एनहांस देयर फाइनेंशियल हेल्थ. कोई एंटिटी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, उनका कैपिटल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसको और बढ़ाने के लिए ये रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है. फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंगल, कैपिटल इज मनी पुट बाय द ओनर्स फॉर दैट रनिंग दैट एंटरप्राइज. हेंस रिकैपिटलाइजेशन इज द वेंचर ऑफ द ओनर और द शेयर होल्डर्स to make firm financially strong. That is the meaning of recapitalization. Okay, कोई भी एक कंपनी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, they are putting additional money to make financially strong that company, and that is called recapitalization. So let us talk about recapitalization of PSBs, public sector bank का मतलब क्या है. So in this special case of public sector banks, recapitalization is injection of capital mainly through equity investment by the government to financially strengthen these banks. Remember, this money is coming through government. Why it is coming through the government? Because government is the majority shareholder of public sector bank, and the responsibility of adding capital to these banks will fall on their shoulder, and that is the reason why it is government doing it. Okay, chaliye, great. So why recapitalization is needed?
3 रीजंस, रिकैपिटलाइजेशन के लिए 3 बड़े कारण, सुनिएगा ये। पहला पॉइंट, राइजिंग वॉल्यूम ऑफ बैड एसेट्स, ठीक है, दैट इज बैंकों का जो बैड एसेट्स है, दैट मीन्स उनके जो लोन्स है उसका रिकवरी नहीं हो पा रहा है, उसका इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड बैड एसेट, बिकॉज लोन्स आर एसेट्स फॉर द बैंक, है ना। टेक्निकली लोन्स आर एसेट्स फॉर द बैंक, फॉर यू एंड मी हु टेक लोन फ्रॉम द बैंक, दैट इज नॉट द एसेट, पर बैंक के लिए वो एसेट्स है बिकॉज उसमें से फ्यूचर में इंटरेस्ट आने वाला है। सो दैट इज व्हाई इट इज दे आर द एसेट्स फॉर देम, एंड दिस एसेट्स आर बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज एनपीए। अब ये जो बैड एसेट्स है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिसकी वजह से बैंकों का कैपिटल धीरे धीरे इरोड हो रहा है, उनकी जो कैपिटल जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है, बेसल 3 इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इसी तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए, उसी तरीके से उनको चलना चाहिए, सो दैट इज कैपिटल नॉर्म्स, ठीक है। जो उनके बेसल 3 के कैपिटल नॉर्म्स है, दे रिक्वायर हायर कैपिटल इन द बैंक्स, the number is around 9% of the you can say base। अब इंडिया में बैंकों का इतना भी नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड नंबर 3, expanding credit needs in the economy can be made only through higher capital। भाई इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को क्रेडिट की जरूरत है, क्रेडिट देने के लिए बैंक अवेलेबल है, पर बैंकों के पास कैपिटल होना चाहिए, तो क्रेडिट, सो देयर इज अ फ्यूचर नीड फॉर क्रेडिट एंड दैट हैज टू बी सपोर्टेड ओनली एंड ओनली थ्रू हायर कैपिटल। तो ये 3 बड़े कारण है जिसकी वजह से ये रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नीडेड। So what are the efforts taken by the government in the past? So let's see this. Number 1, significant portion of the money obtained from disinvestment was put into public sector banks for recapitalization। So आपको याद होगा बहुत सारी बैंकें पिछले कुछ समय में डिसइन्वेस्ट करी गई थी, उसमें से जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा आया that was put into recapitalization। According to CAG report in 2017, government had infused 1,18,724 crore rupees in public sector bank between 2008-9 to 16-17। 10 सालों के अंदर करीबन 1 लाख करोड़ रुपयों का पैसा गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया है। एंड नाउ दिस इज अ सेकेंड वेव ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ 2.11 लाख करोड़। ओके, अब 2 बार इतना स्ट्रॉन्ग कैपिटल इन्फ्यूज करना which may also tell one negative aspect of the banks. Possibly banks have remained very inefficient for the past so many years and they are not able to do their business in a proper manner, and that inefficiency is basically supported by the government, ठीक है, and that is called moral hazard। ठीक है, कि भाई कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा है सही तरीके से और उसको कोई दूसरा बंदा सपोर्ट कर रहा है, so that is called moral hazard। when I know that I am backed by someone, अगर मैं फेल हो गया तो भी मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, so I am sure that I am not going to put proper efforts, that is called moral hazards। okay, so यहाँ पे बैंक्स के साथ शायद ये एप्लीकेबल दिख तो रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज आप सोच सकते हैं पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया और अगले 2 सालों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करने की बात है। दैट इज टेलिंग क्लियर आइडिया अबाउट हाउ बैंक्स हैव रिमेन इनएफिशिएंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ दिस रिकैपिटलाइजेशन विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, नाउ दिस रिकैपिटलाइजेशन requires an MOU which is you can say tri-party agreement। okay, tri-party MOU चाहिए। कौन सी 3 पार्टी चाहिए? पहले तो गवर्नमेंट चाहिए, दूसरा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका मैनेजमेंट चाहिए, और तीसरा जो एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं वो यूनियन है। ठीक है, तो ये 3 लोगों का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव साइन दिस MOU, ठीक है, विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सिंस 2012 for improving their performance while obtaining more you can say recapitalization fund। so एक तरफ वो कमिट करते हैं कि हम हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट उनको कमिट करती है that we are going to give you recapitalization fund।
from 2014-15 onwards, there was a shift from need-based to performance-based capital infusion. Okay, so this is what basic criteria for capital infusion. Now with this recapitalization through bond, it is reasonably unclear on this ground that whether this shift from need-based to performance-based will work out or not. Okay, so what is unclarity about this? The unclear issues are this. Number one, nature of bond issues. ठीक है, whether they will affect fiscal calculations or it will be off balance sheet sovereign liability is not very clear. So भैया ये जो बॉन्ड आ रहे हैं, whether they will be coming through fiscal calculation, मतलब whether it is a part of a budget calculation और पूरे साल भर की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके द्वारा आएगा, या ये ऑफ बैलेंस शीट सोवरेन लायबिलिटी के द्वारा आएगा. नाउ व्हाट इज दिस ऑफ बैलेंस शीट सोवरेन लायबिलिटी, समझते हैं, है ना. ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, लेट अस टेक अ केस. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स. ठीक है, जो काफी बड़ी कंपनी है. ठीक है, और उसके सामने देयर इज अ बैंक. ठीक है, ये कंपनी का एक बैंकर है which is called Y. Company X takes guarantee from this bank कि in case कंपनी X, है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो बैंक उसको गारंटी दे रहा है. अब बैंक गारंटी कैसे देता है? बैंक गारंटी कैसे देता है? बैंक विल सी देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, है ना, उनकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, उनके बिजनेस की स्ट्रेंथ, उनका मार्केट में कैपेबिलिटी की स्ट्रेंथ, उनके बेसिस के ऊपर ये गारंटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब ये जो गारंटी बैंक ने देके रखी है वो कोई बैलेंस शीट में दिखती नहीं है भैया. ठीक है, वो कोई बैलेंस शीट में दिखती नहीं है और इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ऑफ बैलेंस शीट. ओके, तो ये तो हो गया सिंपल सा कहानी. अब इसको हम बैंक के साथ कंपेयर करते हैं. अब कोई बैंक है जैसे बैंक वाई, इट्स अ गवर्नमेंट्स बैंक. ओके, इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक. अ पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑफ बैलेंस शीट यू कैन से सपोर्ट कहां से आता है भाई? उसके पास आता है गवर्नमेंट की तरीके से. गवर्नमेंट ने इसकी एंट्री कोई फिस्कल अकाउंट में करी नहीं है, ये कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, इट इज अ गारंटी. ओके, विच मींस अगर ये फर्जे में गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको बैक करेगा. अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो बॉन्ड इश्यू करे गए हैं वो कैसे है. इट इज कमिंग फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट और इट इज कमिंग फ्रॉम फिस्कल कैलकुलेशन. सो दैट इज द नंबर वन. सो इट इज वेरी अनक्लियर सिनेरियो. नंबर टू, बॉन्ड्स विल फ्रंट लोड कैपिटल इन्फ्यूजन while staggering the fiscal impact. ठीक है, तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, क्योंकि वो पहली बार एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है, तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन है, ठीक है, वो फ्रंट लोड मतलब एक साथ बहुत सारा पहली बार में आ गया, शुरुआत में ही आ गया. ओके, अब उससे क्या हुआ कि जो फिस्कल इंपैक्ट है ना, उसको रोकने के लिए, ठीक है, ये करा गया है, बराबर है, फिस्कल इंपैक्ट को रोकने के लिए. पर भैया इसका जो इंपैक्ट है इन अ लॉन्गर रन क्या होगा उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. सो ये दो बड़े अनक्लियर इश्यूज इसके साथ लगने वाले हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद दिस कैपिटल इन्फ्यूजन. सो विद दिस कैपिटल इन्फ्यूजन, बैंक्स विल मीट क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अंडर बेसल 3. याद करिए, हमने अभी बेसल 3 के बारे में बात करी थी. Yes or no? So that is capital adequacy ratio. कितना चाहिए उनको? 9%. So with this, banks will be able to maintain by March 2019. That is number one. Number two, it is expected to result in the revival of the credit growth. भाई credit growth पिछले 60 सालों में काफी नीचे चला गया. अप्रैल 2017 में it has reached to just 5%. So उसको एक revival मिलेगा. Credit growth मतलब people will start taking lot of loan. And this is one way of solving problems, you can say, under twin balance sheet. याद करिए, अभी हमने बात करी थी twin balance sheet problem. ठीक है, twin balance sheet problem क्या है भैया? जो बैंक्स जिन कंपनियों को लोन दे रही है, ठीक है, वो कंपनियों के बैलेंस शीट में लॉस दिख रहे हैं, therefore they are not able to repay their loan, जिसकी वजह से बैंकों के बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है. So this is called twin balance sheet problem. So twin balance sheet problem को सॉल्व करने के लिए दो बड़े पॉलिसी डिसीजन. वन इज दिस, दैट इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, और दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ओके, सो ये उसको सॉल्व करने का वन ऑफ द तरीका है. सो व्हाट विल हैपन विद दिस इज दिस 3 इंपॉर्टेंट थिंग, 2 more. So it will help
in revival of health of public sector bank. The infusion of 2.11 lakh crore hopefully bring public sector bank out of their excessive risk aversion. So अभी तो वो बहुत risk averse है, so they are not taking lot of risk. So इतना पैसा आने के बाद they will become little risk averse and it will restart credit flow to some of the important segments like MSME. Okay, so this is how they will start. So this is how the capital infusion will provide benefit. So let's talk about what are the negative consequences of this recapitalization of bank. Number one, भैया सबसे पहला point, how government will look at this recap bond. Is it just an accounting way? So हमने अभी देखा that whether it will be a kind of, you can say, fiscal liability में से गिना जाएगा या it is off balance sheet issue. So ये accounting का कहानी बन रहा है. So a lot of analysts are saying that it is very important to see how government will take this into picture. So implementation is the key. ठीक है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक accounting entry तो नहीं रह रही है. Number one. Number two, how global rating agency will view this higher debt to GDP ratio by taking, by infusing so much of money. Bank will have to take a lot of money, you can say will have to take a lot of loan, so the loan to GDP ratio will grow. How will this revive credit demand from large corporates? बड़े बड़े जो corporates हैं उनका जो credit का demand है, whether it will get revived through this, because it is their demand is not heavily dependent on the bank का recapitalization. हमने अगला पॉइंट देखा था moral hazards, allowing public sector banks to dip into exchequer time and again. जब भी उनको परेशानी हो रही है, उनकी efficiency नहीं अच्छी है और वो उनकी हालत खराब हो रही है, so they always depend on the government. ठीक है, हर बार वो गवर्नमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट उनको रिकैपिटलाइज कर लेगी. अगर ये सिनारियो है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली it is very important to understand that banks will remain inefficient and that is called moral hazard. ठीक है, whether this recapitalization will sort out that issue, I think it is going to get into bad shape further. And the last one, it is against the spirit of original Indradhanush scheme. Earlier government came with an Indradhanush scheme. इंद्रधनुष में उन्होंने 7 तरीके के मेथड लगाए थे जिसके द्वारा जो बैड मतलब जो लोन्स है, जो बैंकों का एनपीए बढ़ गया है, उसको किस तरीके से रिवाइव करेंगे. एंड उस समय पे इट वाज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड आने वाला है कि नहीं, दैट इज अ बिग डाउट. ओके, सो दिस आर द नेगेटिव एस्पेक्ट related to recapitalization of bank. I hope this is very clear to you. Thank you very much for watching this and do not forget to subscribe our channel. All the best.